Friends, we are about to commence a new week on Dalal Street. We see the markets in a buoyant mood. Friday we saw Wall Street rally. They opened very high and then I think they slipped after 10 o'clock. If you have watched my video on the Dow Jones, S&P and NASDAQ predictions, I had mentioned that after 10 it will start slipping. So the high of the day was already at 10 o'clock. They slipped quite a bit, then they recovered. The market was happy with the jobs report, which showed the signs of a weakening job market. Unemployment rate ticked higher from 3.8 to 3.9%. The jobs that were created for the month of April were fewer than many anticipated. And the market liked that because if the economy is weakening, it opens the gates for the Federal Reserve to begin cutting interest rates. And when the interest rates go, then the cost of doing business is going down. The profitability increases. As profits increase, the earnings increase, the valuations of the stocks increase, and that's good for the world stock markets. So it is in this atmosphere that we are about to begin the new week. But I must mention that as per as my expectations for the week beginning 6th of May, I don't think it will be so simple. A week, you may in fact see lots of weak spots, some good falls also in the initial part of the week. Be very cautious, okay? It's not going to be as simple as Friday being great. Therefore, you have already seen the gift futures, gift nifty higher. But yet, I feel that the start of the week will not be so great. Going forward to this week, almost every day in this week, barring one, will see at least one good period where there may be a good fall. Also, one day will come when I think the movement will be very narrow. So the start, I am still not expecting to be a great start to the week. This is my expectation. And do join my Ram Navami package, which has daily predictions, or you can join Premium Plus, which has 10 to 12 days predictions, or Premium Value, which has full 1 week predictions in advance. You can do that by WhatsApping us on 9820861044. तो भाई और बहनों, ये हफ्ते की जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, शुक्रवार को बहुत ही खूबसूरत दिन था. डाउ जोन्स, S&P, NASDAQ बड़े, लेकिन जो 10 बजे का उनका हाई था वो हाई ही रहा. ठीक है, मतलब कुछ डिसअपॉइंटमेंट वहाँ रही, पूरी उम्मीदें नहीं आई वहाँ पे भी, और गिरावट 10 बजे के बाद कुछ गिरावट आई, फिर रिकवर हुआ, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो उम्मीद दिखाई दी उतनी नहीं पे क्लोज हुआ. ठीक है, हाई ऑफ द डे पे क्लोज नहीं हुआ. ये दिखा रहा है कि मार्केट को बहुत अच्छा लगा कि जॉब्स की सिचुएशन अब थोड़ी वीक हो रही है. मार्केट में जो है कुछ जॉब मार्केट में कुछ नरमी दिखाई दे रही है. उसकी वजह से फेडरल रिजर्व अपने ब्याज दर को कम करने की क्षमता रखता है. तो वो तो अच्छा रहता है मार्केट्स के लिए और विश्व के लिए भी अच्छा रहता है. फिर भी आप देखेंगे नॉर्मली इंटरेस्ट रेट्स कम हुए तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते, लेकिन बढ़े नहीं उस दिन. लेकिन खूबसूरत बात यह है कि ये हफ्ता जो शुरू होने जा रहा है मई 6 से, जो लोग इतने अब एक्सपेक्टेड है कि अब चालू हो जाएगा इंटरेस्ट रेट कट या नज़दीक आ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे गिरावट के कई चिन्ह इस हफ्ते में दिखाई दे रहे हैं, खास करके हफ्ते की शुरुआत में. अब आप बोलेंगे ये सब कैसे हो सकता है? हाँ, इतनी अच्छी रिपोर्ट आई है. हाँ, इसका तो इंतज़ार था, लोगों को कब से इंतज़ार कर रहे थे, और ये आया, फिर कैसे गिरेगा? तो भाई ये मेरी थिंकिंग है. ये जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि मुझे कुछ वीकनेस इनिशियल पार्ट में भी लग रही है. ऑलमोस्ट एक दिन को छोड़ के एवरी डे में एक गुड फॉल्स भी दिखाई दे रहे हैं. एक दिन तो मुझे मिक्स्ड लग रहा है, मोमेंट नैरो रहेगा काफ़ी, लेकिन शुरुआत में मुझे कुछ वीकनेस भी दिखाई दे रही है. संभाल के ट्रेडिंग करें. और हफ्ते की शुरुआत में लास्ट वीक याद है, अगर मैंने वीडियो में कहा था लास्ट वीक शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी, 2 दिन अच्छे दिखाई दिए. ट्यूसडे को 1 घंटा पहले गिरा. तो हफ्ते में काफ़ी कुछ अलग रूप आते रहते हैं. इस हफ्ते में कुछ अलग रूप दिख रहा है. ठीक है,
तो ज़रूर ज्वाइन करें। हमारा प्रीमियम वैल्यू जो है पूरे हफ्ते की प्रेडिक्शन एडवांस में देता है, या प्रीमियम प्लस ज्वाइन करें जो 10-12 दिन एडवांस में देता है। सभी के लिए संपर्क करने का वही नंबर है 9820861044। आप लोगों के लिए इस हफ्ते में अच्छी खबर रहे, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अक्षय तृतीया भी आ रहा है, ठीक है, तो बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं और यहीं मैं समाप्त करता हूँ। इलेक्शंस जो करें जाके करें, जहाँ जो भी आपको पसंद है अच्छे अच्छे इंसान के लिए करें, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबसे अच्छा जो होगा वही जीत के आएगा, जो भारत के लिए कुछ अच्छा करेगा। बहुत मेहनत किया है ये आज़ादी को प्राप्त करते। मैं नहीं चाहता कि आज़ादी जाए, छोटी छोटी बातों पे लड़के कुछ फ़ायदा नहीं। जो भी आए उन्नति करें, लीगल इश्यूज़ में भी, लीगल मैटर्स में उसको बहुत कुछ, सिर्फ इंफ्रा नहीं है, हेल्थ केयर, मेडिसिन और एजुकेशन, और लीगली काफ़ी लॉज हैं जो बड़े पुराने हो गए हैं, इनहेरिटेंस लॉज हैं जो बिल्कुल ही पुराने ज़माने के चल रहे हैं। आके जो नई गवर्नमेंट है उनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत आगे भी बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ रेल और ये तो ठीक है, अच्छा हुआ, लेकिन अब आगे भी बढ़ना पड़ेगा भारत को। अगर विकसित भारत चाहते हो तो वो विकसित भारत जो है उसमें बहुत कुछ अलग होता है। आप डेवलप्ड कंट्रीज जैसे रूल ऑफ द लॉ को देखेंगे, आप अमेरिका में इनहेरिटेंस लॉज हैं, बहुत सिंपल है वहाँ पे, और और जो हेल्थ केयर है वहाँ बहुत अकाउंटेबिलिटी है। गवर्नमेंट, अगर आप हॉस्पिटल में गए तो ऐसा नहीं कि कुछ भी कुछ आपके टेस्टें कराते जाए, वहाँ पे गवर्नमेंट देख रही है क्या क्या हो रहा है। नहीं होगा सही तो वो पैसे नहीं देगी, और वो बहुत ही ऊपर देखती है, डॉक्टर्स के ऊपर निगरानी रहती है, हॉस्पिटल्स के ऊपर के, ये बेकारी के तो पैसे नहीं खर्च करा रहे हैं। ये सब बहुत कुछ नए गवर्नमेंट के ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। सिर्फ पैसे बांटना, बस ऐसे करना, वो नहीं। ये हम चाहते हैं कि नई गवर्नमेंट ये चीज़ें करे हमारे लिए, आम आदमी के लिए। आम आदमी का मतलब ये नहीं कि जो पुअर क्लास में, मिडिल क्लास, सबकी बात कर रहा हूँ, सबके लिए विकसित भारत का मतलब यही होता है। आके कुछ लॉज में, मेडिसिन में, एजुकेशन में और नौकरियां, ठीक है, ये वो तो हर चीज़ गवर्नमेंट एक एम्पावर कर सकती है, बाकी तो एनवायरनमेंट में खुद क्रिएट करेगा। ये हर वक्त आप ब्लेम नहीं कर सकते गवर्नमेंट को ही नौकरियों के लिए, लेकिन फिर भी हेल्थ केयर, एजुकेशन और लॉज के बारे में ये मैं चाहता हूँ कि न्यू गवर्नमेंट आके ज़्यादा फोकस करे। चलिए, और आप लोगों का ये हफ्ता अच्छा रहे, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करके यहीं समाप्त करता हूँ। जरूर ज्वाइन करें हमारा प्रीमियम वैल्यू। संपर्क करने का नंबर 9820861044। खुश रहिए, आबाद रहिए और यूनाइटेड रहिए। जो भी फैमिलीज में हैं वहाँ पे आप एक दूसरे को सपोर्ट करिए। कहीं का, किसी भी फैमिली में आप हो, कहाँ का निधन हो जाता है तो उसको वीक नहीं करिए, उसका लाभ नहीं उठाइए। हाँ, उससे उसका धन का, उसको किसी का भी हक है, अगर किसी की प्रॉपर्टी में, उसका हक छीनिए नहीं। ये कर्मों का फल है, ऊपर जाके फिर आपको उसका हिसाब देना होगा। जिसका है, और खास करके जिसके माता पिता नहीं रहे, उसका हक है ना, उसमें से आप उसको 50% ज़्यादा दे दीजिए, ठीक है। हाँ, किसी को ऐसा अकेले नहीं छोड़िए, किसकी टेक केयर करिए। जिसके माँ बाप नहीं है उसका आप हेल्प करिए। हाँ, टेक केयर ऑफ देम, ओके। ये मेरे प्रॉमिस करिए, देखा आपका इन्वेस्टमेंट में कैसे आपके करोड़ों के फटाफट बनते जाते हैं। हाँ, गांधी जी कहते हैं ना, फटाफट ये राहुल गांधी के आपके आ जाएंगे खाते में। मैं बोलता हूँ आप सिर्फ इतना एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहिए, देखिए आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे ना, फटाफट देखिए कैसे आप आते हैं आपके पॉकेट में। मुझसे ज़्यादा ईमानदार आपको कोई इंसान नहीं। जो मैं शिक्षा दे रहा हूँ, माफ़ करिएगा, मैं आपसे शायद छोटा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूँ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।